Yeah, so I wanted to just talk about that now, just the CAT exam itself, because I think आपके जितना किसी ने उसको एनालाइज नहीं किया होगा इतने सालों. अभी आई स्टार्टेड राइटिंग कैट अराउंड 2007 इश, तो मैंने थोड़े पुराने भी लिखे हुए थे, बट सो आई यूज्ड टू ऑलवेज फील लाइक के जो एक पहले फ्लेक्सिबिलिटी हुआ करती थी, यू कुड मूव अक्रॉस सेक्शंस, पता नहीं होता था बिफोर यू सिट फॉर द एग्जाम के आज 100 क्वेश्चन होंगे, 150 होंगे, 50 होंगे. अरे देयर कुड बी सरप्राइजेस एवरी डे, राइट? And I felt that was like the true test of your preparedness. और थोड़ा सा brute force से भी आप निकाल सकते हो अभी. पहले थोड़ा सा street smartness को एक advantage था, जो शायद अभी नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कम है. हाँ, अभी कम है, right? So what has been your experience having taught students and having looked at the exam itself? What do you think of the exam today in its current form, and how has been your relationship and journey with the CAT exam? I'll agree with you significantly. The CAT maybe 20-25 years was a better paper of if you are looking at testing the student, okay? Because उसका सबसे बड़ा कमाल की चीज ये तो मालूम ही नहीं है क्या देखने आ रहा है. कोई भी एग्जाम हम लेते हैं including GMAT, GRE, you know what you are going to expect. In your school college exams you know what you are going to get, so it is more a question of mugging up and vomiting, okay? But when we look at CAT of the 90s, no sectional time limit, it is 4 sections. Your job to handle the time limits, your job to make sure you don't mess up any one of the section, and there's a sectional cutoff also. जो है ना, जो street smartness चाहिए, जो ability to manage time, the ability to make sure अच्छा इतना कर लिया अब करके आगे चलो, अगले पे चलो, इसी पे मत लगे रहो, वो चीज जो है आज का पेपर नहीं कर सकता. So to me, one of the biggest drawbacks of the current pattern of this paper is the 3 sectional time limits. You make this paper, retain the paper as it is, I don't have a problem, but remove the sectional time limit, let it be 120 minutes, and let the kid decide how much time to spend where. Because in real life also you have constraints, but within those constraints you have some flexibility also. This paper is making it completely a standardized kind of a paper, which maybe is a requirement because it is being done in multiple slots. Okay, so maybe because it's a multiple slot, it may still be a requirement, but मेरे हिसाब से तब भी जो sectional time limit हटाने में कोई नुकसान नहीं है. It will definitely improve the quality of students who will clear this paper. And sir, if you could tell us about जब every day, every year when CAT happens, तो नवंबर का वो Sunday when CAT happens, and जैसे you must have written CAT how many times, sir? 95 से हर बार लिया है. 1990 में अपने लिए, एक 2003 का नहीं लिया था, लीक हुआ था ना जिस साल, उस साल नहीं ले पाया था मैं, बिकॉज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ही मिस्ड. उस टाइम पे क्या होता है, एसबीआई ब्रांच में जाके फॉर्म लेके आना पड़ता था. आफ्टर दैट द फॉर्म वाज नॉट अवेलेबल, तो मेरा था, मैंने सप्लाई करना था, वो मिस कर गया था. मैं कहा चल तू ले लिया, मेरा क्या फर्क पड़ता है, और उसी साल लीक हो गया पेपर. So apart from that, 2003, every year I have taken the paper from 1995. So how is that analysis का, like, do you also feel excited when writing the exam, कि बाहर आने के बाद कि अभी इसका analysis करना है, लोगों को बताना है? Because I remember it used to be a very big event at one point of time. सिर्फ cutoffs जानना के कौन सा coaching institute क्या cutoff दे रहा है was like a national event. मतलब you rightly said in 2007-8 तो न्यूज चैनल्स के टिकर्स में भी आया करता था कि व्हाट इज द कट ऑफ दैट एवरीबॉडी इज रिकमेंडिंग. जैसे इलेक्शन के एग्जिट पोल्स आते हैं वैसे. ऑफ कोर्स देन आई थिंक इट लॉस्ट, पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट. ये सब पेपर लीक का कमाल है. 2003 के पहले तक कोई नहीं पूछता था, उस साल पेपर लीक हुआ, काफी हंगामा हुआ था. उसके चक्कर में ये लाइमलाइट में आ गया. हम लोग को भी टीवी अपीयरेंस वगैरह का मौका मिल गया, जो हमें कोई पूछता नहीं था. एंड सो 2007-8 तक चलता था रेगुलरली, ठीक है, वो आते थे. उसके बाद वो भी बोल हो गए, हम भी बोल हो गए, सब अपने अपने से चल दिए. एंड 2003 तक जो है कैट, 2002 तक सॉरी, कैट जो है आंसर की भी नहीं देता था, पेपर ही देता. उससे पहले पेपर भी नहीं देता था, जाओ दे के आ जाओ, तुम्हें बाद में चिट्ठी आएगी तो पता चल जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, नहीं आएगी तो नहीं हुआ. बाद में हुआ कि चलो पेपर देने लग जाते हैं. एंड तभी मेरा पेपर दे तो आंसर की भी दे दो. एंड आई स्टिल रिमेंबर वन आई एम प्रोफेसर सेइंग, नहीं, why should we give answer key? Coaching institutes are giving the answer key. मैं कहा तो हमारी आंसर की पे इस सॉल्यूशन दे दो फिर, कि इसी के बेस पे कर दो. हम चार, आफ्टर ऑल देयर आर फ्यू क्वेश्चन, देयर इज अ डिबेट. अगर मैं कुछ आंसर बोल रहा हूँ, अंकित कुछ और बोल रहा है, who's the right person, किसके बेस पे चलें. But fortunately very soon they started doing that. I think there are some of the positives also are. क्वेश्चन पेपर आने लग गया है, आंसर की आने लग गई, ऑब्जेक्शन होने लग गए, कि so that has improved. Otherwise, till 2007 or 8, I would say almost every year, every paper had flaws which were not accepted by IIMs. So, sir, now coming to things that haven't changed, which is that कि बहुत सारे लोगों ने इधर से भी कैट लिखा होगा, दूसरी एग्जाम्स भी लिखे होंगे. अभी अगर आपका
अच्छा नहीं गया है अभी. सीएल की आंसर की भी उन्होंने चेक की होगी. अब तो कैट ने दे दी ना. कैट ने दे दी, मतलब व्हाटएवर परसेंटाइल प्रेडिक्शन देख लिया परसेंटाइल होगा. प्रेडिक्टर, बी स्कूल प्रेडिक्टर, वो सब डाल दिया हमने. हाँ, तो वो सब देखने के बाद अभी जिसको पता है कि उसका तो कुछ नहीं होने वाला इस साल, उसे क्या करना चाहिए? शुड दैट पर्सन वेट एंड Okay. टेक कैट अगेन? पहले तो जैट है ना, पहला काम है जैट. देखो, एज्यूमिंग जैट भी अच्छा नहीं जाता है, उसके इसमें को अलग लेके चलते हैं, बट फॉर द फर्स्ट थिंग इज यू स्टिल हैव अबाउट 3 weeks फॉर जैट. Don't look at ZTech at this point of time. Don't get into that stupid thing called it is ABC or nothing. XLRI is as good as ABCL, as good as FMS. So ABCL, XL, FMS भैया सब एक ही है. XLRI प्लीज चले जाओ, अगर अच्छा मिलता है तो चले जाना चाहिए. XLRI होता है तो XLRI प्लीज full seriousness दो. Don't think कि XLRI is inferior. It is not. It is as good as ABCL, if not better. Okay, that's the first thing. And 3 weeks, your focus should be 2008 से पेपर उठाओ सारे, एंड 2023 तक के सबका वर्बल अच्छी तरह कर लो, डिसीजन मेकिंग अच्छी तरह कर लो. क्वांट 2016 से उठाओ. क्वांट यू विल फाइंड टू बी इजियर देन दैट ऑफ कैट, दिस ईयर्स कैट दैट इज. ओके, इस साल तो काफी लोगों की हालत खराब हुई है क्वांट के अंदर, बट एज आई ऑलवेज से, हालत इसलिए खराब होती है लोगों की पेपर के अंदर क्योंकि मुश्किल सवाल छोड़ने की इच्छा नहीं रखते, वो पीछे पड़ जाते हैं. इसको आज मना के ही मानेंगे, वो मानती नहीं है. वो रियलिटी है, रियल लाइफ में भी दिखता है, पेपर में भी दिखता है. ठीक है, so that is the only issue. So if you just be sensible in this paper. Secondly, the huge advantage you have in ZAT is that it is no sectional time limits and 175 minutes as compared to CAT 14:3 which is 120 minutes. So time की कमी नहीं है. CAT में, क्वांट में या वर्बल में लोगों को तकलीफ इसलिए होती है कि टाइम की कमी होती है. You will not have a time constraint here. You can comfortably solve the paper in the given time. So उसको देखो. If you find वो भी नहीं हुआ, कुछ नहीं है, तो बिफोर यू गो फॉर रीटेक, देखो हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा सबको रीटेक करना चाहिए. ठीक है, नॉट गुड फॉर यू. यू नीड टू फर्स्ट बी वेरी ऑनेस्ट इन शीशे देख के पूछना चाहिए भैया औकात है रिपीट करने की कि नहीं. डू आई थिंक इफ आई रिपीट आई एम गोइंग टू इंप्रूव माई स्कोर सिग्निफिकेंटली? If I am at 90, 92 percentile this year and next year again I get a 95, 96, I'll still get the same set of colleges. It is not that they're going to change. They will still be the same. From a 90 to 93, you need to get to a 98, 99 to get to the next level of colleges. Otherwise, nothing is going to change for you. Then why do you want to repeat? So, which is I always believe कि पहला चीज ये देख लो यार, do you think you have a reasonably good chance of improving? इस साल तैयारी की थी कि नहीं, ढंग से की थी, तब भी नहीं हुआ. क्या गैप से, उसको देखो, फिल कर सकते हो कि नहीं. सेकेंडली, अगर नहीं तैयारी की थी, क्या गारंटी इस बार भी करोगे? ये कोई मैं या कोई और नहीं तुम्हें बता सकता. इट इज अ कॉल यू नीड टू टेक फॉर योरसेल्फ. डू आई थिंक आई विल बी एबल टू मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन माय स्कोर्स नेक्स्ट ईयर? इफ यस यू कैन टेक अ रीटेक. इफ नो, या तो लाइन चेंज करो, या तो जो कॉलेज अच्छा ठीक ठाक मिल रहा है तुम्हारे स्कोर पे उसको लो और आगे चलो. एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, ये आप बात कर रहे थे कैट के नंबर्स की, ऑफ रजिस्ट्रेशंस वगैरह, 10-15 साल तक बीच में स्टैग्नेशन क्यों आ गया? आई थिंक दिस इज द ईयर व्हेन एक्चुअली देयर हैज बीन अ जंप इन द रजिस्ट्रेशंस अगेन. सो व्हाई डिड द कैट एग्जाम लूज फेवर विद द जनता? We need to be clear, our industry, CAT preparation is built on failures. ठीक है, this is a negative industry by the way. ये इंडस्ट्री क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि स्कूल कॉलेज ने तुम्हें ढंग से नहीं पढ़ाया. अगर वो ढंग से पढ़ा लेते तो हम बेरोजगार होते या कुछ और काम कर रहे होते. दैट्स द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन. इट्स लाइक सेइंग इन्वर्टर क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि बिजली नहीं आती ना. बिजली आती तो इन्वर्टर की चिंता कौन करेगा? So that is the way we are. We are like an inverter. We are there because someone somewhere is not doing his or her job correctly. Okay? Now coming to the second part, which you said इसके अंदर numbers क्यों बढ़े? 2002, 3, 4. If you look at the fees for MBA program, it was that you could have easily done an MBA in about 4-5 lakhs rupees for 2-year program. By the time we hit 2007-8, that cost of doing an MBA went up to something like 14-15 lakhs. When you are doing a 3-4-5 lakh rupee MBA and getting a 6 lakh rupee job, it was worth it. When you're doing a 15 lakh MBA and getting a 6 lakh, 7 lakh rupee job, it is not worth it. That was the issue. The output was not getting what they think they should get after doing this kind of investment. Secondly, if you look at the number of MBA institutes, 2002, 3, 4 versus 7, 8, they almost doubled. Then सबको एडमिशन मिल रहा, किसी को काम नहीं मिल रहा. Then you also had those global economic crisis वगैरह also 2007, 8, 9 के आसपास. Then उसका भी थोड़ा impact है. But I think the bigger impact was the number of colleges mushroomed and the fees became almost 3 to 4 times, but the salaries went up only marginally. So it did not make sense for many people to go for it. And who are the people who are driving this boom?
दे वर एट द, देखो जो टॉप 10% है ना, उनको गौतमपुरी की करियर लॉन्चर की किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप निकाल सकते हैं, तैयारी करते हैं हमारे साथ, हमको थैंक यू बोलते हैं, पैसे देके जाते हैं, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है, बट दे कुड हैव इजीली got through without us also. That's something we need to be very very conscious of, कि we were fortunate they chose us, but the नीचे वाले हैं ना, जो नीचे के 70-80% है, उनको सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है, दे आर द वंस हु कम एंड व्हेन दे रियलाइज किया मेरा टॉप में जाने का चांस कम है, उसके बाद ये हो जाएगा और जॉब भी अच्छी नहीं मिलने का चांस है, दे विल स्टॉप डूइंग.